Yes, we did. That day we discussed about different sources of recruitment. Can you name the sources of recruitment before starting the next? Internal, external, Yes. and Internal, external. internal sources of recruitment and external sources of recruitment. Fine. Name any two internal sources of recruitment. Any two. Transfer and promotion. Transfer and promotion. Name any one external source. Any one. Recommendation Campus and recruitment. recruitment. One by one. Casual One by one. Scholars. Hmm? Campus recruitment. Campus recruitment. Casual color. Casual collars. Labor Employment contract. exchange. Employment exchange. Yes. Management consult. contractors. Management consultants, also known as Headhunters. Headhunters. Headhunter. employment exchange or Labor Labor contract. contractors. labor contractors. Print Print media. media. हाँ जी, Print media. print media, Print media. print media, Advertisement on TV. electronic media, Web publishing. web publishing, yes, or Recommendation. Recommendation of employees. recommendation of Direct employees, recruitment. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. ऑलमोस्ट हो ही गया लगता है मेरे को सारे, है ना. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये डायरेक्ट कौन सी होती है रिक्रूटमेंट? सर जब वो जो बोर्ड्स प्लेस करते बाहर लगा देते अपने ऑफिस के. अपने ऑफिस के, अपनी फैक्ट्री के, अपने शोरूम शॉप के बाहर लिख के लगा देते हैं, है ना. दुकान पे काम करने वाले लोगों की जरूरत है, फैक्ट्री में काम करने की हेल्पर की जरूरत है, वो सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, है ना. डायरेक्टली द एम्प्लॉयर इज आस्किंग अबाउट द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज. So we'll discuss about now merits and demerits of internal sources. First of all, merits. लिखिए. Number one, motivation of employees. This we are doing merits of internal sources. Means when we transfer the employees from one job to another, or one department to another, or one machine to another, or one office to another, right? Or when we promote the employees, then, you know. So first point is motivation of employees. So employees feel motivated when we promote them. They feel motivated. Their morale is high. Their morale becomes high. जो उनसे और ज्यादा काम लेने में हमारी हेल्प करता है. When there is chances of internal recruitment. Chances of internal recruitment means उनके promotion के chances हैं. Suppose हमारी फर्म में एक मैनेजर की जरूरत है. In spite of this thing कि हम बाहर से हायर करें मैनेजर, हम सोचते हैं क्यों ना किसी सुपरवाइजर को या किसी फोरमैन को मैनेजर बना दिया जाए, बिकॉज हर मैनेजर से पहले फोरमैन होता है, जो उसने काम किया होता है. ठीक है, उसको काम तो आते, क्यों उसको बना दिया जाए. इससे क्या होगा, जब एम्प्लॉइज को पता है कि अगला जो मैनेजर की पोस्ट खाली हो रही है, हम में से ही कोई जा रहा है, तो सारे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड फील करेंगे. और जिसको हम बना देंगे मैनेजर, वो अलग से मोटिवेटेड बाद में फील करेगा. डन. सेकेंड पॉइंट इज economical way of recruitment. Economical way of recruitment. How it is an economical way? You can tell me. Ashita. क्योंकि उसमें हमें कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं देनी पड़ती. बिल्कुल ठीक है बेटा, हमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई पैनल नहीं बिठाना पड़ता, कोई उसको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती. एवरीथिंग ही नोज अबाउट द फॉर्म एंड ही नोज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आल्सो. सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से. एडवर्टीजमेंट की आपने बात कर दी कि वो नहीं करनी पड़ती है. फाइनेंशियली आल्सो, ये फाइनेंशियली भी और अदरवाइज आल्सो इट इज वेरी कम. नेक्स्ट इज persons at lower level gets chances of promotion. Persons at lower level get chances of promotion. ये पॉइंट भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है. लोअर लेवल पे जो पर्सन है उसको चांस मिलता है प्रमोशन लेने का. अगेन वो साथ में ऐड कर सकते हैं हम पॉइंट की, मोटिवेशन से फील करता है पर्सन. नेक्स्ट इज टूल फॉर रिटेनिंग एम्प्लॉइज. Tool for retaining employees.
हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, हमने स्टाफिंग में ये बात करी है that staffing is not limited to that filling the vacancies, but its scope is also to keep the vacancies filled. तो क्या होगा अगर एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा नहीं है, इसमें एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाए, तो वो क्या करेंगे, फिर वो बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे। स्टाफिंग इज नॉट लिमिटेड टू दिस कि वैकेंसी होगी खाली उसको भर दो, वैकेंसी होगी उसको भर दो, टू कीप देम फिल्ड आल्सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज आल्सो द जॉब ऑफ स्टाफिंग। इट मींस एवरी बिजनेसमैन वांट्स कि उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो रिटेन हो, बिजनेस में रहें। इट इज easier for the businessman, for the employer to get the job done from older employees rather than जो new employees, क्योंकि न्यू कुछ पता नहीं होता, न्यू के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, पुराने एम्प्लॉइज का पता ही है सारा कुछ, है ना। और जब हम एम्प्लॉइज को रिटेन करते हैं, जितना पुराना हमारा एम्प्लॉय हो रहा है उतनी ही पुरानी हमारी वो एसेट हो रही है। बाकी एसेट्स पुरानी होती हैं तो खराब होती हैं, एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसी एसेट्स हैं जितनी पुरानी हो रही उतनी ज्यादा शाइन करती है, ज्यादा उसको बिजनेस का पता होता है। एवरी बिजनेसमैन वांट्स कि मेरे पुराने एम्प्लॉय ही मेरे पास रहे, टू रिटेन द एम्प्लॉय। तो प्रमोशन और ट्रांसफर जो है मींस इंटरनल सोर्सेज जो हैं, दे सर्व एज अ पर्पस ऑफ रिटेनिंग द एम्प्लॉयज इन द बिजनेस। देन इज ट्रांसफर ऑफ मेक मी एम्प्लॉय। होस्ट प्लीज। हाँ जी, मेक मी होस्ट, एक्चुअली कनेक्शन पुअर था तो निकल गया था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, वेट मैम। ओके, थैंक यू सर। Next is transfer of employees helps in maintaining balance in the organization. Means when we transfer employees from one department to other, what happens? It maintains a balance in the organization. Balance कैसे कि जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉइज हैं वहां से निकाल के हम वहां पे डाल रहे हैं जहाँ पे कम एम्प्लॉइज, हमें एम्प्लॉइज को रन आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम एम्प्लॉइज को ऐसे ही बैलेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इट आल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अगर एक्सटर्नल सोर्सेज से हम कर रहे हैं, इट विल बी अ लेंजियर प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, बिकॉज एक्सटर्नल पर्संस आ रहे हैं एंड वी डोंट नो अबाउट देम। हमें कई तरह से उसकी इंटरव्यू लेनी पड़ेगी, टेस्ट लेना पड़ सकता है, मेडिकल फिटनेस लेना पड़ सकता है, हमें उनके रेफरेंसेस लेने पड़ सकते हैं, बिकॉज हम बाहर से एम्प्लॉय जो है वो हायर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जहां हम इंटरनल की बात करें, अगर हम इंटरनल सोर्सेज से एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं तो वी नो एवरीथिंग अबाउट देम। हमारी ये सिलेक्शन करना इजी हो जाता है, बिकॉज एम्प्लॉयज का पता है, हमें उनका बिहेवियर पता है, उनकी बैकग्राउंड पता है, उनकी हेल्थ वगैरह पता है, उनको हमारा पता है। it becomes easy for the employer, for the manager to hire the employees, means the process of selection becomes easy. Next is कितने पॉइंट्स हो गए? 6 हो गए। ये सेवंथ वन, सेवंथ है, ये लिखिए, सेवंथ लास्ट पॉइंट है इसका। नो नीड ऑफ ओरिएंटेशन। नो नीड ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है? मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन, हैंड रेज करिए प्लीज। वन, ये हमने रिसेंटली पढ़ा है मेरे ख्याल से, या कल पढ़ा होगा, उससे पहले पढ़ा, अभी पढ़ा ही है अभी। 4 गुड, 5 वेरी गुड, 1 2 3 4 5। एनीवन न्यू फेस? कोई कोई तो डेली आंसर करते हैं बच्चे बेचारे, कोई और बच्चा है ओरिएंटेशन? कोई नहीं हो? चलिए, नवजोत। सर अगर हमें हमारी फर्म में कोई न्यू आता है तो उनको सारा कुछ एक्सप्लेन करना, फेमिलियर करना ऑर्गेनाइजेशन की कि हाँ यहाँ पर ये चीज है। It is particularly related to the large scale organization, जहाँ पे ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, वहाँ पे होता है पर्टिकुलरली ओरिएंटेशन, है ना। छोटे बिजनेस में क्या ओरिएंटेशन होनी है? मीन्स टू मेक द एम्प्लॉइज फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका डिपार्टमेंट ये है, आपका ऑफिस ये है, या आपने इस मशीन में काम करना है, या आपने यहाँ बैठ के काम करना है, ये आपका पीसी आपको मिला हुआ है, उसके आने जाने का टाइम क्या है, एम्प्लॉय के लंच ब्रेक कितने से कितने बजे होनी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी,
मेडिकल फैसिलिटीज कौन सी मिलनी है ना, ये सारा कुछ जो है दिस इज ओरिएंटेशन। जितनी बड़ी ओरिएंटेशन, जितनी बड़ी कंपनी होगी, बिजनेस होगा, उतनी ही ज्यादा ओरिएंटेशन। इसलिए बड़े बिजनेस में ज्यादा है, छोटे बिजनेस में होती नहीं है। अगर छोटा सा शोरूम हो, नया एम्प्लॉय आ जाए, उसे क्या करेंगे, काम शुरू कर दी, यही कहेंगे उसको, और क्या करेंगे, बिजनेस छोटा सा है हमारा, है ना, तो उसकी ओरिएंटेशन छोटी होगी, थोड़ी होगी। इट इज आल्सो नोन एज, ओरिएंटेशन इज आल्सो नोन एज Induction. induction. Good. Also known as one more, Socialism. Familiarization. socialization and familiarization. ये चार वर्ड इसके हैं, induction, orientation, familiarization and socialization. So no need of training is there. Shivanshi, such type of training, induction training is not required in case the employees are being recruited from the internal sources. क्योंकि उनको तो पहले ही पता है कौन सीनियर कौन जूनियर, क्या डिपार्टमेंट, क्या लीव फैसिलिटीज हैं, क्या मेडिकल, एवरीथिंग अबाउट द फर्म दे नो, द ओल्डर एम्प्लॉइज। ठीक है, सो ये भी टाइम जो है फर्म का बच जाता है। दीज आर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। नाउ डीमेरिट्स। Demerits. First point is no fresh talent will be found. No fresh talent will be found. Fresh talent बाहर से कुछ नहीं रिपीट आता। करना। No fresh talent will be found. Fresh talent will not be found. The firm will not be able to find any fresh talent because जो हमारे पास पड़े हुए हैं पुराने एम्प्लॉइज वही हैं। अगर किसी ने कोई फ्रेशर कोर्स किया हुआ है, कोई और कोर्स किया है, कोई नई मशीनरीज आ गई है, कोई नया मेथड आ गया है मार्केट में, वो हमें नहीं पता होगा, वो फ्रेश एम्प्लॉइज को पता होगा, तो दैट विल नॉट बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ। सेकंड पॉइंट इज एम्प्लॉइज विल बिकम लेथार्जिक। एम्प्लॉइज विल बिकम लेथार्जिक, कैसे, इसे कौन एक्सप्लेन करेगा? Sir, what employees will become? लेथार्जिक, लेजी। कौन एक्सप्लेन करेगा? बस दो। How from internal sources the employees will become lethargic? Three only. Lethargic means lazy, means वो काम नहीं करेंगे, कनिका। सर एम्प्लॉयज को पता है कि मतलब बाहर से कोई भी न्यू एम्प्लॉय नहीं आएगा, उनके बीच में से सारी प्रमोशन और ट्रांसफर होगी, इसलिए वो अपने वर्क के लिए केयरलेस हो जाते हैं। और बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। एम्प्लॉयज को पता है कि प्रमोशन तो हमारे से ही होनी है, इंटरनल सोर्सेज ही कर रहे हैं, एक्सटर्नली तो उन्होंने करना कुछ नहीं है, तो जो फिर जो है वो वैसा ही काम करते हैं और लेथार्जिक से हो जाते हैं, कोई नहीं, प्रमोशन तो हो ही जाएगी, है ना। अगर ये कंपटीशन हो यहाँ पे कि आप बाहर से भी ले सकते हैं, पर्सन हमारे से भी ले सकते हैं, तो उनको फिर ये होता है कि यार बाहर से बंदा आना, कहीं मेरे से अच्छा ही रहा जाए, तो ज्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन विल बी हैम्पर्ड। Competition will be hampered. Means कंपटीशन नहीं रहेगा, ये इसको नेगेटिवली वर्ड है ये हैम्पर्ड। मीन्स नहीं रहे कंपटीशन बिकॉज जो क्वालिटी की एम्प्लॉइज है वो नहीं आ रहे हैं। जो हमारे पास पहले एम्प्लॉइज पड़े हुए हैं, डोंट मीन टू से कि वो क्वालिटी की नहीं है, वो भी क्वालिटी के हैं, लेकिन जो बाहर से एम्प्लॉइज आएंगे उनके साथ हमारा कंपटीशन अगर होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा फॉर्म के लिए। जो पहले ही एम्प्लॉइज हमारे पास है उनका तो पता ही है हर एक को वो काम कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है ना, और क्वालिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि बाहर से जब हम फ्रेश टैलेंट लेंगे तो क्वालिटी भी अच्छी आएगी, तो कंपटीशन जो होगा वो ज्यादा होगा। एंड व्हेनेवर द कंपटीशन इज देयर इन द एम्प्लॉइज, तो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होगा, हमेशा ऐसे होगा, बिकॉज एवरीबडी विल वांट टू प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो सारे काम करेंगे, ज्यादा अच्छे काम करेंगे, बेनिफिट विल बी देयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। This next is frequent transfer of employees. Frequent transfer of employees will be harmful for the organization. अगर बार बार एम्प्लॉइज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इट विल बी हार्मफुल। हमने एक मशीन में एक बंदा काम कर रहा है, उसको हमने हटा के 2 महीने के बाद मशीन चेंज कर दी कि आपकी ट्रांसफर हो गई है, मशीन बी पे लगा दिया, तो 2-3 महीने के मशीन सी पे लगा दिया, तो जो वो टाइम बेचारा वो सीखने में लगा रहा है, हम उसका वेस्ट करे जा रहे हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफर करके
दूसरी मशीन में या दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे ऑफिस में लेके जा रहे हैं, तो जो टाइम वो पहले लगा चुका है वो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, विच विल बी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ही नया है वो इंटरनली कैसे रिक्रूट करेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ पुराने बिजनेस वाले केस में ही पॉसिबल है कि इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट हो सकती है। एंड लास्ट पॉइंट इज इन दिस इज sometimes it may not be possible, sometimes it may not be possible to fill the vacancies with internal sources, to fill the vacancies with internal sources। कई बार पॉसिबल ही नहीं होता, जो पर्सन हमें चाहिए वो हमारी फॉर्म में है ही नहीं, तब भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। जिस क्वालिटी का पर्सन चाहिए या जिस डिपार्टमेंट का, सपोज किसी फॉर्म में नया जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसका हमें एक हेड चाहिए, और वो उस हेड की कैपेबिलिटी का पर्सन हमारे पास है ही नहीं, हमें टेक्निकल पर्सन चाहिए उसके लिए सपोज, तो वो हमारे पास अगर है ही नहीं है तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू हायर द एम्प्लॉय इंटरनली। सो दीज आर द सम ऑफ द demerits ऑफ इंटरनल सोर्सेज। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्सेज। External sources merits। Merits of external sources of recruitment. First is suited for temporary workers, suited or suitable for temporary workers, with those workers who are doing temporary job somewhere, it is very suitable for them। तो पहले टेम्परेरी हैं, वो छोड़ के बिजनेस को चले जाएंगे तो उनके लिए बहुत सूटेबल है, ठीक है, वो वहां जाके परमानेंट हो जाएंगे। सेकंड इज मोर चॉइस। चॉइस हमारी बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास सपोज 20 एम्प्लॉइज फॉर्म में काम कर रहे हैं तो हमारी चॉइस उन 20 में से रहेगी। अगर हमें किसी को प्रमोट करना हो, अगर हम उसको जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से करेंगे तो क्या होगा, उस केस में हमारे पास चॉइस पे बहुत ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा एम्प्लॉइज आने के चांसेस। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट, ठीक है, ये पॉइंट हमने इंटरनल में भी कर लिया है कि अब वहां पे डीमेरिट्स में किया हमने कि फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा अगर हम इंटरनल सोर्सेज से करेंगे रिक्रूटमेंट को। जो उसकी डीमेरिट है यहाँ वो मेरिट बन जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट विल बी देयर अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज से कर रहे हैं रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। वही सारे जो उसके डीमेरिट्स है इंटरनल के, इसके मेरिट्स बने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट विल बी देयर अमंग द एम्प्लॉइज, उनको पता है कि बाहर से पर्सन भी आने हैं तो दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स। And last point is less chances of favoritism। less chances of favoritism। favoritism means कि कई बारी मैनेजर जो है वो किसी वर्कर या किसी सुपरवाइजर के लिए थोड़ा फेवर कर देता है ना, तो उसको थोड़ा वो प्रमोशन के चांसेस जो ज्यादा जो है वो उसके नजदीक है, इमोशनली हम कह सकते हैं, तो उसके लिए वो ज्यादा चांसेस देता है, उसको प्रमोट करना कर देता है या करने के चांसेस देता है। तो दीज केसेस कांट बी देयर इफ द रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन एक्सटर्नली, वहां पॉसिबल नहीं। These are the merits of external sources। Now next is demerits। Number one is dissatisfaction among existing staff। डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो स्टाफ हमारे पास पहले ही एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसमें डिससेटिस्फेक्शन है कि जब हम हैं तो हमारी जगह पे किसी और को लेके आने की क्या जरूरत है। अगर मैं हूँ, मैं एक सुपरवाइजर हूँ या मैं फोरमैन हूँ और मैनेजर की पोस्ट के लिए मैं बनता भी हूँ
तो कंपनी जो है वो मेरी वो बाहर से मैनेजर जो है वो अपॉइंट कर रही है, तो इट विल डिससेटिस्फाई मी कि मैं भी तो कर ही रहा था, मेरे को भी तो कर सकते थे, बाहर से पर्सन नहीं, क्या जरूरत थी। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो स्टाफ डिजर्व करता है, ही विल बी डिससेटिस्फाइड। देन इज लेंथी प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस विल बी लेंथी, विल बी टाइम कंज्यूमिंग, सिंपली बिकॉज के पहले ऐड निकालो, फिर पैनल को बुलाओ, पैनल बैठेगा, फिर वो जो है वो उसकी इंटरव्यू वगैरह या टेस्ट वगैरह लेगा, फिर वो डिसाइड करेगा, उसके बाद और फॉर्मेलिटीज भी हैं, एंड आफ्टर दैट इंडक्शन भी होगी बिकॉज एम्प्लॉय ने, इट विल बी ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज कॉस्टली प्रोसेस, कॉस्टली भी है, ये हमने पॉइंट वहां मेरिट्स में किया, इंटरनल में इट इज इकोनॉमिकल, जो अगर वो इकोनॉमिकल है तो एक्सटर्नल जो है वो कॉस्टली है, बिकॉज अखबार वगैरह में ऐड निकालना, फिर उसके ऊपर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, उस पर स्पेंड करना पैसे, फिर उसको इंडक्शन देनी, उसके 2-4 महीने अपनी फेमिलाइजेशन में लगा लेने हैं आराम से, उसको पता नहीं चलना नई फॉर्म है, सारे सिस्टम का टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम लग रहा है मीन्स मनी भी जो है वेस्ट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेन रिस्पॉन्स फ्रॉम आउटसाइडर्स, अनसर्टेन रिस्पॉन्स फ्रॉम आउटसाइडर्स, हम कह तो देते हैं कि हमने एक्सटर्नली जो पर्सन है उनको रिक्रूट करना है, बट इट इज नॉट श्योर कि एक्सटर्नली पीपल विल अप्लाई और नॉट, क्या पता वो अप्लाई ही ना करें, उस केस में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हम बाहर से पर्सन अपॉइंट कर लें, सपोज हमारे पास 10 वैकेंसीज हैं, लेकिन जो पर्सन आए हैं रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए, वो सिर्फ 12 ही आए हैं, तो हमें 12 में से करने पड़ेंगे फिर, है ना, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। जबकि अगर हम इंटरनली करते तो उस केस में हमारे पास चॉइस ज्यादा भी हो सकती थी, या दोनों केसेस से करते, इंटरनली भी करते और एक्सटर्नली भी करते। नेक्स्ट पॉइंट इज चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। इंटरनल सोर्सेज में क्या था कि हमें एम्प्लॉय का पता है, और हमें पता है कि वो पर्सन जो है डिजर्व भी करता है, वो इस एक वर्कर जो है वो डिजर्व करता है एक सुपरवाइजर के तौर पे, एक सुपरवाइजर जो है डिजर्व्स टू बी अ मैनेजर, मैनेजर जो है ही डिजर्व्स टू बी अ डिपार्टमेंटल हेड, हमें पता है, हमें एम्प्लॉय का पता है, लेकिन जो एक्सटर्नली पर्सन जो अपॉइंट कर रहे हैं वहां हमें पता नहीं पर्सन कैसा है, इंटरव्यू टाइम पे हो सकता है वो अच्छा बन जाए, अच्छा लगे तब वो फॉर दैट टाइम भी, बट वी आर नॉट श्योर कि वो जैसा दिख रहा है वैसा ही रहेगा, क्या पता वो 6 महीने काम करे उसके बाद जो है वो अपना वो उसकी नेचर अलग निकले, क्या पता वो हमें सूट ही ना करे, तो दोबारा उसको निकाल देंगे, दोबारा उसको किसी और को रखेंगे, फिर हम यही काम करते रहेंगे। ठीक है, समटाइम्स wrong selection can also be there which will be harmful for the organization. And last point is increase in labor turnover, increase in labor turnover, labor turnover क्या होती है, what is the meaning of labor turnover? One, two, very good, more, three, yes, गुरलीन बताओ गुरलीन। सर जब एम्प्लॉयज स्ट्राइक्स वगैरह कर देते हैं, एम्प्लॉइज स्ट्राइक कर स्ट्राइक्स वगैरह कर देते हैं, नहीं, स्ट्राइक नहीं करते बेटा एम्प्लॉइज, स्ट्राइक वाला पॉइंट नहीं बोली, अदरवाइज चलो वेल ट्राई, नो प्रॉब्लम। और कोई दिव्यांशी? सर ये वो रेट है जिसपे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, यस, स्टेबल नहीं रहता हमारा कुछ। बिल्कुल ठीक है, बाकियों का आंसर यही था, हर्षिता, शिवांशी, नवजोत, आपका यही आंसर था? अगर Yes, ठीक sir. है ठीक आंसर है। गुरलीन आंसर कर गया, बताओ बेटा। लेबर टर्नओवर मींस कि जब एम्प्लॉइज जो है वो काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से करेंगे रिक्रूटमेंट, क्या होगा, एम्प्लॉइज कहेंगे कि हमें कौन सा इन्होंने प्रमोट करना है, अगर मैंने प्रमोशन लेनी है तो मेरे को जो ऑर्गेनाइजेशन वो छोड़ के जानी पड़ेगी, है ना, मेरे को ये इतनी जल्दी नहीं करेंगे रिक्रूट, मतलब प्रमोट करेंगे, अगर मैंने प्रमोशन लेनी है तो मेरे को वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोड़ के जानी पड़ेगी, तब मैं प्रमोशन ले सकता हूँ, बिकॉज ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं, इंटरनल करते ही नहीं है, ठीक है। तो एम्प्लॉइज विल फील डीमोटिवेटेड एंड व्हाट दे विल डू, they will leave the organization, which will increase the chances of labor turnover. Then these are the demerits of external sources. Topic हमारा क्या चल रहा है? रिक्रूटमेंट।
Recruitment. is a part of what? It is subtopic. Staffing. Aspects of staffing. Aspect of staffing हमने कल शुरू किया था, जिसमें से फर्स्ट था रिक्रूटमेंट, सेकंड कौन सा है? Selection. Selection. Second, yes. Second aspect will start selection. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, बोलिए। सर लेबर टर्नओवर वाला पॉइंट फिर से समझा दो। लेबर टर्नओवर मीन जब एम्प्लॉइज काम छोड़ के चले जाते हैं। When we will externally appoint the persons, हम बाहर के पर्सन्स को रिक्रूट कर रहे हैं, वहां से हम जो है वो डिपार्टमेंट में या बिजनेस में लेके आ रहे हैं। तो जो हमारे अपने एम्प्लॉइज हैं, इन्होंने तो बाहर से लेके आना है, मीन्स के हमारे अपने एम्प्लॉइज को जो प्रमोशन के चांसेस है वो नहीं मिल रहे हैं। एम्प्लॉइज विल फील डिमोटिवेटेड। अगर उन्हें प्रमोशन लेनी है तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो फर्म छोड़ के चले जाएं और किसी और फर्म में, अगर वो सुपरवाइजर है तो एज अ मैनेजर ज्वाइन कर ले, अगर वो मैनेजर है तो एज अ डिपार्टमेंटल हेड ज्वाइन कर ले, क्योंकि फर्म जो है हमारी वो एक्सटर्नल सोर्सेज से कर रही है, इंटरनल से नहीं कर रही है ना। क्लियर था पॉइंट? किसने पूछा था बेटा? थैंक यू सर। वसुंधरा ने। Sundra. क्लियर है बेटा? वसुंधरा। यस सर। नेक्स्ट हमारा आस्पेक्ट है स्टाफिंग का सिलेक्शन। सिलेक्शन के बारे में मेरे को एक लाइन करके 2-3 बच्चे बता दे। जो आपको पता है आपने वो बताना है, सही गलत नहीं बताना, देखना आपने। सही है, सही गलत मैं कर दूंगा अपने। एक लाइन बतानी है आपने और 2-3 बच्चे बता देंगे, बस बहुत है। यस दिव्यांशी। So selection है। वेट करना बेटा, वेट करना। हरलीन बता दे, हरलीन बता। Selection is the process of choosing and identifying the best person Identifying out of Hurleen, selected candidates for a job. हरलीन रिपीट करना पड़ेगा बेटा, ऑडिबल नहीं थे आप। Is identifying and choosing the best person and identifying the best person out of a prospective candidates for a job. Yes. Identifying and choosing the best person who is capable of that job, है ना? बिल्कुल ठीक है। एक लाइन और ऐड कर दीजिए, कोई जना और इसमें ऐड कर दे। I want 3 मार्कर, मेरा 1 मार्क हो गया, है ना? एक आध और ऐड कर दीजिए। तनवीर कर दे, तनवीर करो बेटा। It is a negative process of accepting the best and rejecting the rest. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। It is a negative process as it deals with rejection of the employees. सिलेक्शन ओनली उतने पर्सन्स की हो रही है जितने पर्सन हमें चाहिए, बाकी तो हम रिजेक्ट ही कर रहे हैं। सपोज हमारे पास 5 वैकेंसीज थी, 50 एप्लीकेशंस आ गई, 5 को यस करेंगे, 45 को तो हम रिजेक्ट ही करेंगे। सो इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। एक लाइन और ऐड कर दीजिए। एक लाइन कोई भी और ऐड कर दीजिए जो आपको आए। यस दिव्यांशी। So सिलेक्शन प्रोसेस में उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करना पड़ता है और पर्टिकुलर पोस्ट पर उन्हें प्लेस करना। बिल्कुल ठीक है बेटा। इन सिलेक्शन प्रोसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉइज, द एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉइज, द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज इज आल्सो सीन। शिवांशी। हाँ जी। Sir, they have to give test and interview for their employment. यस बिल्कुल ठीक है बेटा। सिलेक्शन करते वक्त उनका टेस्ट लेते हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं, उनकी बैकग्राउंड चेक करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, उनके पुराना एक्सपीरियंस चेक करते हैं, सारा कुछ। वेरी गुड बेटा, ठीक है। सो मीनिंग इज ओके, ऑलरेडी डन। इशिता, यस बोलो बेटा। इशिता। गलती से हो गया था सर, गलती से हो गया। अच्छा, ऐसे रखोगे हाथ, ऐसे ही हाथ रख लो, रेज हैंड रखो। यस, नेक्स्ट है टॉपिक इसी का ही, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इसका भी प्रोसेस है। हमने कई कर लिए हैं प्रोसेसेस। हमने सबसे पहले एक मैनेजमेंट का किया था, याद है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो प्रोसेस ही है। हमने प्लानिंग का भी किया है, हमने ऑर्गेनाइजिंग का भी किया, हमने रिक्रूटमेंट का भी किया, है ना? सिलेक्शन का भी हो गया, और भी आगे भी आ जाएंगे। और इन प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस एग्जाम में भी आ जाएगा। जितना मैं एग्जाम डालूंगा ना, सब में एक प्रोसेस आएगा। चलो, पेपर लीक हो गया,
ठीक है, 5-6 प्रोसेस तो आई जाने हैं आपके, 5-6 टॉपिक तो ये बनते हैं, 5-6 आगे जाके बनते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला टॉपिक आएगा, टॉपिक 5-6 वो भी हैं। एक टॉपिक यहाँ से भी आना है, एक टॉपिक वहां से भी आना है, जाओ लर्न कर लो, बोर्ड में भी आएगा, 2 क्वेश्चन पक्के आने हैं, लिख लीजिए। कौन सा आना है अब ये नहीं पता, एक आ जाएगा प्रोसेस। ठीक है, हमारा 1-2 प्रोसेस पड़े भी हैं अभी और करने वाले। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आते हैं, मैंने 12 मार्क्स का पेपर लीक कर दिया है, अपना भी और बोर्ड का भी। ठीक, सो अब इसका जो फ्लो चार्ट है ना, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाना, ऐसे ही बनेगा, नीचे ही बनाना बेटा। ऐसे करके बनाना, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस बनाना। एट बॉक्सेस, ठीक है। इसके बाद इधर 8 के 8 बॉक्सेस को एक लंबा सा बॉक्स, एक बॉक्स ऐसे, यहां पे लिखिए रिजेक्टेड इफ फाउंड अनसूटेबल। रिजेक्टेड, तो लिखा है रिजेक्टेड इफ फाउंड अनसूटेबल। वसुंधरा पूरा बेनिफिट लेती है, साथ बैठे भाई बहन को पढ़ा देती है, बीच में कॉमर्स इसने पहले ही कर जानी है, चौथी बजे में बाद में करनी है। क्लास छोड़ के बुलाया उसको, चौथी बजे में कहते कर लेंगे बाद में, पहले +2 कर ले, कोई बात नहीं। चलिए, सो हियर आई हैव रिजेक्टेड इफ फाउंड अनसूटेबल, ये सबके साथ रिलेट करना है आपसे हर एक स्टेप के साथ, तो उतना ही बड़ा बन जाएगा ये वाला कोर्स है ना। फर्स्ट स्टेप है आपका, देखिए फर्स्ट स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, इसमें क्या होता है, इसमें साथ में कहीं इधर चाहे लिखते रहे, जहां मर्जी आपको लगे अच्छा वहां लिखते रहे, मैं डिक्टेट नहीं करवा रहा हूँ, मैं अकेला समझा ही रहा हूँ, पॉइंट्स बहुत इजी से। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है? इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें हम टोटली अनसूटेबल कैंडिडेट्स में उनको हम पहले ही स्क्रीन करके, पहले ही सोर्ट करके बाहर निकाल देते हैं। सपोज हमने कहा कि हमने एक वैकेंसी निकाली है किसी मैनेजर की, उसकी एज शुड नॉट बी लेस देन 40 ईयर्स एंड एक्सपीरियंस शुड बी एटलीस्ट 10 ईयर्स। व्हाट माय पॉइंट है ना, एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का होना चाहिए कम से कम, और एज शुड नॉट बी लेस देन 40 ईयर्स, मीन दैट पर्सन शुड बी मैच्योर्ड इनफ कि वो ग्रुप को हैंडल कर ले। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर सपोज उस टाइम पे कोई पर्सन है, उसकी वो अप्लाई करने के लिए आए, उसकी एज 35 ईयर्स है, तो डायरेक्टली ही इज रिजेक्टेड। दैट इज द प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, कि बिना कुछ किए, क्योंकि हमारे वो जो हमने उसको दिया हुआ है, क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो उसमें फिट नहीं हो रहा, या उसकी एज तो 40 प्लस है लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं है, हम 10 साल कमाओ, उसका 3 साल एक्सपीरियंस है, 4 साल एक्सपीरियंस है, तो वो सूट ही नहीं कर रहा, तो उसको हम पहले ही सॉर्ट आउट करके निकाल देंगे कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई है जी, रिजेक्टेड बिकॉज यू हैव बीन फाउंड अनसूटेबल। फर्स्ट स्टेप में जो लाइन लगाई यहाँ पे हमने, इसकी है ये डन। सेकंड है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट, इसमें हम उसका रिटन टेस्ट कह सकते हैं, वो लेंगे हम, या कोई और टेस्ट, ओरल टेस्ट भी हो सकते हैं, वो हम लेंगे, और अगर वो उसमें अनसूटेबल रहा, वो टेस्ट नहीं पास कर पाया, तो ही विल बी रिजेक्टेड। नो वाला केस इधर आ रहे हैं सारे, अगर वो पास कर गया देन ही विल मूव टू द थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू से भी क्लियर है, जब उसको पैनल के सामने बैठ के इंटरव्यू देनी पड़ेगी, और अगर इंटरव्यू पास कर गया तो ही विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप, अगर नहीं देन अगेन रिजेक्टेड बिकॉज ही इज फाउंड अनसूटेबल। ठीक है, एक सिलेक्शन टेस्ट ना, इसकी टाइप्स होती हैं, टाइप्स देखना बुक में, हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, 4-5 टाइप्स होती हैं इसकी, आपके बुक में टेस्ट दिए होंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ऐसे करके पढ़ के आना, 1 मार्क भी बनता है वो, 3-4 मार्क भी बनता है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देन इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद है स्टेप नंबर 4
रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस। उसकी हम बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके पुराने एम्प्लॉयर को चेक कर सकते हैं, उसकी रेफरेंसेस लेते हैं, जो लोकल जो उसको जानते हैं पर्सन, उनके नेम फोन नंबर लिखवा लेते हैं, सो दैट कि कल को उसके बारे में कोई नॉलेज लेनी हो तो उनसे हम ले सकें, पर्टिकुलरली फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर आल्सो। देन इज सिलेक्शन डिसीजन। नेक्स्ट स्टेप में डिसीजन ले लेते हैं हम सिलेक्शन का, दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, सारा कुछ इंटरव्यू भी हो गई, उसका टेस्ट भी हो गया, सिलेक्शन डिसीजन है। नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन, then it is checked कि whether he is fit for the job or not। sometimes कोई बड़ी मशीनरी पे काम करना होता है किसी वर्कर ने या एम्प्लॉय ने सपोज, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है कि वो मेडिकली फिट भी है हमारी फर्म के लिए कि नहीं। अदरवाइज आल्सो यूनिक मशीन पे ही काम करना, अदरवाइज आल्सो मेडिकल एग्जामिनेशन इज डन। देन नेक्स्ट इज जॉब ऑफर। जॉब ऑफर, इन दिस स्टेप द जॉब इज ऑफर्ड टू हिम बाय गिविंग एन अपॉइंटमेंट लेटर। द जॉब इज ऑफर्ड कि हाँ जी आपको जॉब दे रहे हैं, ये आपकी सैलरी होगी, इतनी आपको छुट्टियां मिलेंगी, इतनी आपके वर्किंग आवर्स रहेंगे, ये आपकी पोस्ट है, इतने बजे आपने जो है वो आना है, इतने बजे आपने जाना है, सारी टर्म्स कंडीशन वहां पे लिखी होती है। एंड लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में समटाइम्स हम एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप साल से पहले जॉब छोड़ के नहीं जा सकते हो, 2 साल से पहले जॉब छोड़ के नहीं जा सकते हो, अगर आप जाओगे तो आपकी सैलरी रख ली जाएगी, लाइक दिस इज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और जिस जिस स्टेप में एम्प्लॉय जो है वो सूटेबल है वो आगे बढ़ता रहेगा, और जहां जहां वो अनसूटेबल है वहां वहां वो रिजेक्ट होता रहेगा। इट विल कंप्लीट द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे बेटा, डाउट्स डिस्क कल ही ले लेंगे बिकॉज सेकंड्स आर लेफ्ट नाउ। मे वी एंड द मीटिंग।